اپوزیشن کا دھاندلی سے متعلق بیانیہ جھوٹا ہے، یہ لوگ احتساب سے بھاگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے پی ڈی ایم کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی۔ پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کے ساتھ بیٹھک، کہا اپوزیشن اتحاد اپنی موت آپ مر گیا۔ پی ڈی ایم خود اختلافات کا شکار ہے، استعفیٰ دینے والے اب استعفوں سے بھاگ رہے ہیں۔ اپوزیشن نے انتخابی اصلاحات پر بھی دوہری پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم کا لینڈ مافیا کے خلاف بھی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وہ جو 22 ایئرز کا جد و جہد وہ کیا کر رہا تھا اس وقت، اگر تیاری نہیں کر رہا تھا؟ آپ نے 3 سال بعد آپ کہہ رہے ہو کہ ٹریننگ چل رہا تھا۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ استعفیٰ دو، گھر چلے جائے۔ وزیر اعظم کے پاس مسائل کا حل نہیں تو گھر چلے جائیں۔ بلاول بھٹو کا عمران خان سے مطالبہ، کہا اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تو خیبر پختونخوا میں اور 22 سال کی جدوجہد میں کیا کرتے رہے؟ جعلی اراکین نے استعفے جمع کرا دیے، اراکین پر قوتیں دباؤ ڈال رہی ہیں، یہ سلوک بند کیا جائے ورنہ سب کو بے نقاب کر دوں گا۔ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کی مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب کو استعمال کرنے کی مذمت۔ مولانا عبدالغفور حیدری کی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس، کہا کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو کچھ ہوا تو دھرنا ہوگا۔ ادارے وزیر اعظم کی پشت پناہی چھوڑ دیں۔ نیب انتقامی اور سیاستدانوں کی پگڑی اچھالنے کا ادارہ ہے۔ حافظ حسین احمد اور مولانا شیرانی کے حوالے سے کمیٹی بنا دی ہے۔ حکومت اتحادی سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے سرگرم۔ فنکشنل لیگ نے اپوزیشن کو مذاکرات کی آفر کر دی۔ کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف سے محمد علی درانی کی 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ پیر صاحب پگارا کا پیغام پہنچایا۔ 4 نکاتی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز بھی دی، کہا مذاکرات اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور اپوزیشن کے مفاد میں ہے۔ جیل میں رہ کر میں کس سے اور کس طرح مذاکرات کروں گا؟ شہباز شریف کا جواب۔ مسلم لیگ نون کے 2 ارکان مرتضی جاوید عباسی اور محمد سجاد نے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجے یا نہیں؟ اسد قیصر نے استعفوں کی تصدیق کے لیے دونوں رہنماؤں کو طلب کر لیا۔ جواب نہ دینے پر استعفے منظور تصور کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا رہنماؤں کو مراسلہ۔ نون لیگ نے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجنے کی تردید کر دی۔ ایم کیو ایم کا الحق اور خالد مقبول کی پریس کانفرنس، کہا مردم شماری پر تحفظات کے باوجود کچھ نہیں کیا گیا، امیدیں پوری نہیں ہوئی، اس کابینہ میں کیوں رہے جس میں آواز نہ سنی جائے؟ سڑکوں پر نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں مردم شماری کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، ملک اور قوم کا دفاع ہر صورت میں کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں خطے کی سیکورٹی صورتحال، بیرونی اور داخلی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایل او سی پر بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہے۔ کورونا وائرس کے ملک بھر میں حملے جاری، قاتل وائرس ایک دن میں ریکارڈ 111 افراد کو نکل گیا، 2256 نئے کیسز رپورٹ۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی پیر نور محمد شاہ کورونا سے انتقال کر گئے۔ کراچی میں شرح 12.45% ریکارڈ۔ پشاور کے مزید 9 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ گیارہ جنوری کو تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے یا نہیں؟ وزارت تعلیم نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس 4 جنوری کو ہوگی۔ کانفرنس ویڈیو لنک سے ہوگی۔ کورونا صورتحال اور اسکول کھولنے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان فساد کی جڑ ہے، نون لیگ کو استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی گفتگو، کہا اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی، 28 اپریل سے نیا ای پاسپورٹ لانے کا اعلان، کم از کم میعاد 10 سال ہوگی۔ وزیر اعظم صاحب 2.5 سال بعد آپ کو پتا چلا تیاری نہیں، آپ کی نااہلی سے معیشت تباہ ہوئی۔
जिसे करप्ट कहते थे उसे वजीर खजाना बना दिया। मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूछा क्या शेख रशीद, खुसरो बख्तियार, शाह महमूद, उमर अय्यूब नए हैं? इमरान खान इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा अस्करी क़यादत के साथ तय हुआ था गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से कबल कोई भी सूबाई हैसियत की बात नहीं करेगा, लेकिन इमरान खान ने सबको धोखा दिया। आसिफ जरदारी का मौलाना को फोन, फजलुर रहमान को लाड़काना जलसे में शिरकत की दावत। इस्तीफों समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की वापसी के लिए राब्ते में हैं। बरतानवी हुकूमत ने अभी तक नवाज की बेदखली का फैसला नहीं किया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की गुफ्तगू, कहा माजी में बरतानिया से कैदियों का तबादला हुआ है। शेख रशीद से इख्तलाफ की तरदीद भी कर दी। साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ पर शिकंजा मजीद तंग हो गया। एहतिसाब अदालत लाहौर ने जायदाद कर्क करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत, डीजी नैब को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कराची में मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध के साथ बदसलूकी पर सिंध हुकूमत के कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट काबीना के इजलास में पेश। रिपोर्ट में बताया गया कि बाज़ वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली में मुकदमे के इंदिराज और मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव डाला। आईजी पुलिस के साथ बदसलूकी का मामला आर्मी चीफ के एक्शन के बाद तय हो चुका। सूबाई काबीना का रिपोर्ट पब्लिक न करने का फैसला, मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाया जाएगा। प्रोजेक्ट्स की तामीर में ताखीर, वजीर आजम की चीफ सेक्रेटरी सिंध पर इजहार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी सिंध 250 में से सिर्फ 19 प्लॉट्स की तामीरात पर कोई जवाब ना दे सके। बिजनेस कम्युनिटी को क्यों तंग किया जा रहा है, वजीर आजम का इस्तफसार। कहा मुल्क में दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। एक साल प्रोजेक्ट ताखीर पर 5 करोड़ मार्कअप देना पड़ता है। सूबाई हुकूमत की जानिब से 250 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी का इंतजार। अमरीकी सहाफी डैनियल पर कत्ल केस, सिंध हाई कोर्ट ने चारों मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। तमाम मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। अहमद उमर शेख समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत के बाद दोबारा नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में है, नजरबंदी गैर कानूनी है। रैकोडिक केस में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना, मुकर्ररा वक्त गुजर गया, पाकिस्तान $1.5 अरब जमा ना करवा सका। टीथियान कॉपर कंपनी ने पाकिस्तानी असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर ही हुक्म जारी किया। मुल्की मफादात का दिफा करेंगे, अटॉर्नी जनरल का बयान। दुश्मनी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के दर पे है। वज़ीर आला पंजाब ने यौम कायद और क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म दे दिया। कहा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त चौकस रहे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, नायक यासीन शहीद और 7 सिपाही जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक और 10 जख्मी हो गए। कराची के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा तोहफा, बिलावल भुट्टो ने मलिर एक्सप्रेस वे मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कोरंगी ट्रैक से शुरू होने वाला 40 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे सुपर हाईवे पर काठोड़ के मकाम पर खत्म होगा। 6 लेन का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से 2.5 बरस में मुकम्मल होगा। पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अमवात की इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इस्तीफा वजीर आला महमूद खान को भिजवा दिया। इस्तीफों के साथ इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुंसलिक। बोर्ड के चेयरमैन समेत 5 मेंबरान ने इखलाकी तौर पर इस्तीफे दिए थे। इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने मोहम्मद और दयामर भाषा डैम की माली जरूरत के लिए $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी दे दी।
कोरोना सूरत-हाल से निपटने के लिए क्रो गैंग ऑक्सीजन टैंक्स की टैक्स फ्री दरामद की भी मंजूरी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की उसूली तौसीक हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों के लिए 4 अरब 18 करोड़ रुपए भी मंजूर। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोई दबाव नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के वीजा इशू का इसराइल को तस्लीम करने से ताल्लुक नहीं। पाक चीन फिजाई मिशन शाहीन 9 इख्तिताम पजीर। तकरीब में सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और चीनी सफीर की शिरकत। चीनी सफीर ने कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक और उनकी मुसल्लह अफवाज का बाहमी ताउन वक्त की अहम जरूरत है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी का नेशनल सिक्योरिटी कोर्स के शुरा से खिताब। कहा, शुरा कौमी सलामती से मुताल्लिक पेशावराना सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करें। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के कौमी रिस्पॉन्स के लिए सलाहियतें बरोए कार लाएं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4 घंटे से जायद ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, T20 की निस्बत हमारा टेस्ट स्कोर तजुर्बाकार है। न्यूजीलैंड से अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन की तैयारियां, मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान समेत 13 खिलाड़ियों की प्लेटिनियम लिस्ट में शमूलियत। हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, हसन अली और शान मसूद डायमंड कैटेगरी में शामिल। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 2-0 से शिकस्त देकर कारबाओ कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी से टाकरा होगा। टॉटनहम हॉटस्पर ने स्टोक सिटी को 3-1 से हरा दिया। मुल्क भर में क्रिसमस की तैयारियां, लाहौर में बच्चों और बड़ों की खरीदारी। खानेवाल में दुआया तकरीब का एहतमाम। केक भी काटे गए। साहिवाल के मुस्तहिक मसीही खानदानों में राशन तकसीम। जहलुम में भी राशन और इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। और क्रिसमस की खुशियां सिर्फ एक दिन दूर। थाईलैंड में चमकते दमकते फ्लोट्स, SOPs के साथ पेट का एहतमाम। न्यूयॉर्क और पेरिस जगमग करने लगे। फलस्तीन में तैयारियां आखिरी मराहिल में। फिनलैंड में सांता का सफर। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में खरीदारी तेज हो गई।